Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Professor Nilesh Anandwani, and today's topic will be very interesting topic because we are going to discuss about division angiosperm from the chapter number 3 Plant Kingdom 11th standard CBSE. In this topic I will explain you characteristics of angiosperm plant. I'll teach you types, means classes of angiosperm plant, as well as I'll give you some significance of angiosperm plant. So let's start in detail. So these are some which I have prepared from the NCERT 11th standard book. In the book it was in the paragraph, but I have made it in a point wise so that you can also write in theory papers and you can also prepare it for the NEET examination. So if you wanted to take this photograph, you can take a screenshot or you can pause and you can write also, whatever you want to do. I'll teach you this topic in English and Hindi, both the language, so there is no worry about Hindi medium student also. So let's start. Angiosperms seed are enclosed by fruits. So generally अगर हम फेनोरोगैम्स में डिस्कस करें तो दो प्रकार होते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म. तो उसमें जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड होती है वो क्लोज्ड होती है और सीड के ऊपर दो कवरिंग होती है. आउटर कवरिंग को हम कहते हैं टेस्टा, इनर कवरिंग को हम कहते हैं टेगमन, और सीड फ्रूट के अंदर होता है. इन एंजियोस्पर्म seed has a two covering. Outer covering is called testa and inner covering is called tegmen. This outer testa, inner tegmen, both are made from the one part of a ovule. Yes, that generally called tegmen and testa, tegmen. And second character, they ranges in the size from tiny, almost microscopic like a wolfia, to the tall tree like a eucalyptus which grow up to 100 meter. एंजियोस्पर्म प्लांट जो है उनमें साइज वेरिएशन काफी अलग है. अगर आप देखो तो सबसे छोटा प्लांट इस प्लेनेट का जो होता है वो होता है वोल्फिया प्लांट. मैंने इसके ऊपर कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया हुआ था. उसका पूरा नाम था वोल्फिया ग्लोबोसा, साइंटिफिक नाम. सो वोल्फिया एक ऐसे प्लांट है जिनकी साइज नियर अबाउट 0.1 mm से लेके 0.2 mm तक, मतलब mm में होती है साइज, मिलीमीटर में. तो काफी छोटे प्लांट, मतलब दुनिया के अर्थ के सबसे छोटे प्लांट कह लो, वो होते हैं वोल्फिया. और यूकेलिप्टस जो प्लांट है वो एंजियोस्पर्म में सबसे टॉलेस्ट प्लांट है जिनकी हाइट 100 मीटर तक होती है. दे प्रोवाइड अस विद अ फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल प्रोडक्ट. अगर सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो प्रोवाइडिंग अस फूड, दे आर आल्सो यूज्ड एज अ फॉडर. There are certain angiosperms which are also used nowadays as a fuel, like atropa, and maximum medicinal plants are angiosperm only. कुछ ऐसे प्लांट है जिनके फ्लावर से, स्टेम से, लीफ से हम कुछ मेडिसिन बनाते हैं. जस्ट लाइक गार्लिक is a famous medicinal plant from which we are making a medicine also, but garlic is actually undergone modification of a stem. You can say about the neem plant. Neem plant has a muscular repellent property. Neem plant also has some medicinal property against TB also, so it has a medicinal action, and there are so many product we are getting from the medicinal plant as a angiosperm. They are of a two class. Angiosperm has basically two class. One is a dicotyledon and second one is a monocotyledon. अब इसका मतलब क्या होता है डाइकोटिलोडोन और मोनोकोटिलोडोन? सो डाइकोटिलोडोन वो वाले प्लांट होते हैं जिनके डाइकोटिलोडोन वो वाले प्लांट होते हैं जिनके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, मतलब सीड के दो पार्ट्स होते हैं. और मोनोकोटिलोडोन वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर सिंगल पार्ट होते हैं. अब आप ये देख लो, ये सिंपल सा जैसे हम कहते हैं जो खाते हैं चना वगैरह, तो आप कैमरे में देख सकते हो नहीं, आई डोंट नो. तो ये वाला जो है ये डाइकोट कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर हम ऐसे सेंटर से एकदम ब्रेक करें तो ये वाला दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो डाइकोट प्लांट वो होते हैं जिनके सीड दो भाग में डिवाइड होते हैं, और मोनोकोट वो होते हैं जिनके सीड के दो भाग नहीं होते हैं. एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको. जैसे पी प्लांट है, पी प्लांट सीड विल गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सो इट्स डाइकोट. मैंगो प्लांट इन विच सीड विल गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इट्स कॉल्ड डाइकोट. राइस सीड दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी, मेज सीड दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, व्हीट दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, तो इनको हम कहेंगे मोनोकोट. ठीक है, तो ये वाले होते हैं डाइकोट और मोनोकोट, दो टाइप, या तो आप कह लो दो क्लासेस. नेक्स्ट, मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर is a stamen, produce pollen grain, and the female sex organ is a pistil, carpel, or you can also call gynoecium. Within ovules are present highly reduced female gametophyte termed as a embryo sac. मैं आपको बताता हूँ.
फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, मेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको हम कहते हैं एंड्रोशियम या तो आप कह लो स्टेमेन, और उनके अंदर जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उन गैमेट को हम कहते हैं पोलन ग्रेन। और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको हम कहते हैं पिस्टिल या तो कह लो आप कार्पेल, या तो तीसरा नाम है उसका गाइनोशियम, और उनके अंदर जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं एग। इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मींस एंजियोस्पर्म, मेल सेक्स organ is called stamen, also called as a androecium, and this androecium produces a male gamete called as a pollen grain, also called microspore, whereas female sex organ is called pistil, carpel, and third name is a gynoecium, which produce megaspore, also known as a egg, and egg produced in female is produced inside one embryo sac which is found inside the ovule, female ovule. Next, sixth character, each embryo sac has a 3 egg apparatus, 1 egg cell, 2 synergids and 3 antipodal and 2 polar nuclei। मैं आपको बताता हूँ, ये जो 6th नंबर कैरेक्टर है, ये वाला आप डायग्राम देखिए, ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक होता है एग। सो टोटल कितने होते हैं सेल एम्ब्रियो सैक के अंदर? एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल 8 नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उनमें से 3 होते हैं एंटीपोडल, 2 होते हैं सेंटर पे पोलर न्यूक्लियाई, 2 होते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड एक्चुअली एग के नीचे होते हैं और एग उनके ऊपर होता है, और एक सेल होता है एग। तो टोटल 8 हो गए, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई 5, 2 synergids 7 and 1 egg, total number of cells are 8। जनरली एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं, वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, एंड में बताता हूँ। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम एंथर आर कैरिड टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, मतलब पोलन ग्रेन पोलिनेशन होने के बाद स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरता है। और पोलिनेशन अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्म में 5 प्रकार की पोलिनेशन मेनली पाई जाती है। पोलिनेशन इन एंजियोस्पर्म कैन टेक्स प्लेस वाया विंड, we called it as anemophily. Pollination in angiosperm can take place via water, we called hydrophily. It can take place via insect, we called entomophily. It can take place via birds, we called ornithophily. It can also take place by bats, we called chiropterophily. Sometimes pollination also takes place by snail, we called melecophily. So pollination होने के बाद पोलन ग्रेन फीमेल गैमेट के स्टिग्मा पे जाता है और वहां पे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होती है और पोलन ग्रेन स्टिग्मा के अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद क्या होता है फर्टिलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं सिंगैमिंग। क्या कहते हैं हम? सिंगैमिंग। फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट में 2 प्रकार की होती है, इसके लिए हम इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे देखिए, 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म जाइगोट, वी कॉल्ड सिंगैमिंग, and another male gamete fuses with a diploid secondary nucleus to produce endosperm, we also called it as a double fertilization. Zygote develop into the embryo with a one or two cotyledon, either 1 cotyledon means monocotyledon, 2 cotyledon means dicotyledon, and other is a pen development of endosperm provide nourishment to the embryo। अब इस वाले डायग्राम में आप समझ जाओगे। मेल जनरली एक पोलन ग्रेन फीमेल के अंदर ट्रांसफर करता है और वो पोलन ग्रेन सेल डिवीजन होने के बाद डबल हो जाते हैं। मेल जनरली ट्रांसफर 1 पोलन ग्रेन इनटू फीमेल which undergo cell division and turn into the 2 pollen grain. Now 1 pollen grain generally bind with this egg. So 1 pollen grain from male and 1 egg from female, it turn into the zygote, and this zygote turn into the new plant. This zygote actually turn into the embryo temporary, then it will turn into the new plant. लेकिन जैसे ह्यूमन बीइंग में एम्ब्रियो को अंदर के जो बेबी होता है, माँ के अंदर पेट के अंदर जो बच्चा होता है, उस बच्चे को न्यूट्रन प्रोवाइड करना मदर का काम होता है वाया प्लासेंटल कोड। लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, उनमें प्लासेंटल कोड जैसा कुछ नहीं होता है। तो एग और पोलन ग्रेन मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट को नरिशमेंट कौन देता है? तो उसे जाइगोट को नरिशमेंट देता है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म एक ऐसा न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो सेकंड फर्टिलाइजेशन से बनता है, और वो किससे बनता है? एक पोलन ग्रेन और 2 पोलर न्यूक्लियस। तो आप समझ लीजिए एंजियोस्पर्म में 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है। इन एंजियोस्पर्म देयर आर 2 टाइम फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग फर्स्ट फर्टिलाइजेशन 1 पोलन ग्रेन एंड 1 egg fuse with each other, we call syngaming. First fertilization we call syngaming, and result of first fertilization is nothing but formation of embryo, zygote and later on embryo. And second fertilization we also called it as a double fertilization or triple fusion, because there is a 1 pollen grain
plus there are two polar nuclei. So there is a fusion between two polar nuclei and one pollen grain. Therefore there are three cells. That's why it is also called triple fusion और PAN stand for primary endosperm nucleus. अब आप यहाँ पे इस वाले डायग्राम, इस वाले थियरी में देखिए, ये वाले पॉइंट पे देखिए, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गई सिंगे में जिससे जाइगोट बनता है और फ्यूचर में एम्ब्रियो बनता है, और सेकंड फर्टिलाइजेशन या तो डबल फर्टिलाइजेशन कह लो, इससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म. अब जो फ्रूट बन जाता है, फ्रूट के अंदर सीड होती है और सीड में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एम्ब्रियो और दूसरा होता है एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को ताकि एम्ब्रियो की प्रॉपरली ग्रोथ हो और उससे दो पार्ट्स बाहर निकले. एक होता है प्लूमुल और दूसरा होता है रेडिकल. प्लूमुल बेसिकली क्या होता है, जिससे सीड में से स्टेम बनता है, और रेडिकल वो होता है जिससे रूट बनता है. तो ये वाला टॉपिक है हमारा एंजियोस्पर्म. आई होप सो मैंने आपको सभी के सभी चीजें क्लियरली डिटेल में कह दी. मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ. एंजियोस्पर्म्स आर दोज प्लांट विच आर हैविंग अ क्लोज्ड सीड. देयर सीड इज कवर्ड बाय टू लेयर, outer testa, inner tegmen. Yes, and both these layers are made by integument part of a you can say ovule. Basically angiosperms are flowering plant. They are having a true root, true stem, true leaves, branches, flower and fruit, everything. जनरली एंजियोस्पर्म की साइज वेरिएबल है. छोटा से छोटा एंजियोस्पर्म वोल्फिया है 1 से 2 mm, 0.1 to 0.2 mm तक, और यूकैलिप्टस टोलेस्ट एंजियोस्पर्म है जो 100 मीटर तक ग्रो होता है. एंजियोस्पर्म में फूड, फोडर, फ्यूल, सेवरल प्रोडक्ट में यूज होता है. एंजियोस्पर्म हैज अ टू क्लास, मोनोकोटिलोडोन, डाइकोटिलोडोन. मोनोकोटिलोडोन means seed have only one part like rice, maize, wheat, sugarcane, and dicotyledon seed has a two part like a sunflower, you can say wheat, sorry not wheat, I mean to say pea, and you can say mango, etc etc. And generally in case of angiosperm, male gamete is male, or sex organ is called as a stamen, also known as androecium, which produce pollen grain or also called microspore. Female sex organ pistil, also called carpel, also called gynoecium, which produce megaspore or egg. Fusion of microspore and megaspore, or you can say fusion of pollen grain and egg, turn into the zygote, and second pollen grain bind with a polar nuclei, turn into the endosperm, which gives a nourishment to embryo. That's all. This is about angiosperm. मैं कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ आपको. ये एम्ब्रियो सैक है जिसमें 8 सेल थे, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियर, 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल. ये कुछ एंजियोस्पर्म. जितने भी आपको फ्लावरिंग प्लांट आपके आसपास के एरिया में दिखते हैं वो सभी के सभी प्लांट्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं. ये सभी फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म. Okay, so thank you so much for watching this video. This lecture was from the chapter number 3, kingdom planting or plant kingdom, and topic was division angiosperm. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही आगे वीडियो देखते रहना चाहते हो हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.